દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન નેત્રંગ ખાતે મહાસભા યોજી। ડેડિયાપાડાના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય તેમજ બંધ કરવી વચ્ચે બબાલ થતા તેમના વિરુદ્ધમાં ડેડિયાપાડા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। લાંબા સમય સુધી ફરાર રહ્યા બાદ તેઓ જાતે જ પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈ ગયા હતા। ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા હાલમાં જ્યારે જેલમાં છે ત્યારે ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં આમ આદમી પાર્ટી મેદાનમાં ઉતરી છે, જેના ભાગરૂપે આજરોજ નેત્રંગ ખાતે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ તેમજ પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માનની હાજરીમાં ચૈતર વસાવાના સમર્થકોમાં વિશાળ જનસભા યોજવામાં આવી હતી। મિત્રો, આજ મને વિશ્વાસ આવ્યો કે 26 માંથી 26 તમારી પૂંજી ભરૂચથી વગાડીશું અને આજે હજી તો ગુજરાતમાં એન્ટ્રી કરી છે। સાહેબ, પંજાબમાં તમામ સરકારી કચેરીઓમાં જવાનું જરૂર નથી, સરકારી કચેરીઓ તમારા ઘરે આવવાનું ચાલુ કરી દીધું ભગવત માનજીએ। મિત્રો, ભાજપ વાળા પ્રાઇવેટીકરણ કરી રહ્યા છે, ભગવત માન સાહેબ ત્યાં સરકારીકરણ કરી રહ્યા છે, પ્રાઇવેટ મિલકતો ત્યાંથી ખરીદી રહ્યા છે। તમને કહેશે સાહેબ, વધારે ન કહેતા, એક વ્યક્તિ 10 વ્યક્તિને જાગૃત કરે, ફોન કરે, મેસેજ કરે અને હા, સરકનાથ જુઓ છો કે નથી જોતા? ટાઈગર અભી 2027માં ડણક મારીને પાછું આ લોકોની મુર્ગી બનાવી દેવાની છે મિત્રો। અને સૌ સાથે મળી આ તાનાશાહી સરકારને લોકસભામાં હરાવીશું। અમે આદિવાસીઓના સંતાન છે, અમારા પૂર્વજોએ અંગ્રેજોની ગુલામી પણ સ્વીકારી નથી, અમે ક્યારે ડરવાના નથી। આદિવાસી સમાજ અને ગુજરાતની પ્રજા માટે અમારો સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે, છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડીશું। ભલે હું જેલમાં છું પણ હું મારા લોકો માટે લડતો રહીશ। ગુજરાતના ખૂણે ખૂણામાં આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારાને પહોંચાડીશું। આપ સૌનો સહકાર મળતો રહે એવી આશા રાખું છું। આ સભામાં પંજાબના સીએમ ભગવત માન કેન્દ્ર સરકાર પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર દેશ પોતાની માલિકીનું હોય તેમ કેન્દ્ર સરકાર સિવાય કોઈ પણ ચૂંટાયેલા સરકારના સારા કાર્યને બિરદાવવા કરતા એ કાર્યકરના લોકો પર કેસો કરીને અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે। જેમ કે આમ આદમી પાર્ટીના ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ સરકાર કામો પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા ત્યારે ખોટા કેસમાં ધરપકડ કરી લેવામાં આવી। આ જ વસ્તુ મનીષ સિસોદિયાની પણ ધરપકડ કરી આ જ પ્રકારે આ પાર્ટીના સુંદર જૈનની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી। ત્યાંથી ન રોકાયા તો જ્યારે દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે સરકાર અને અદાણીના સંબંધ પર આંગળી ઉઠાવી તો એમની પાછળ પણ ઈડી લગાવી દીધી। એટલે વર્તમાન સરકારની સામે સાચું બોલનાર વ્યક્તિ પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તે નિંદનીય છે। ये पहले से होता आया है, जो भी लोगों की लड़ाई लड़ता है और जो लोगों को लूटते हैं उनके खिलाफ लड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है। लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े लाम लश्कर ढेर हो जाते हैं। जब पब्लिक खड़ी हो जाती है, मैंने पेशा कानून पढ़ा, 3 जा है जा, इंग्लिश में कह लो जे, जो आपके हैं, जल, जंगल, जमीन। दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे वैसे कमीशन लिया था, वो रो रहे हैं जी, ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए, इससे अच्छे इतने शानदार। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? जी, मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी, हमने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं, ये सरकारी को रोको। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है? कहते जी स्पिंदर जैन, जेल में डाल दो। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है? संजय सिंह, जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी।
ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो। अरे हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे। ये जेलें रोक नहीं सकती। दरियाओं का रास्ता खुद बनता है। दरियाओं का कोई रास्ता नहीं बनाता, दरिया खुद रास्ता बनाते हैं। चेतर भाई आपका दरिया है, खुद रास्ता बनाएंगे। आप खड़े हो इतनी भारी गिनती में भाई साहब, ये देखो कहीं कोई इलेक्शन तो नहीं है, कोई वोट मांगने तो नहीं है, कोई पैसे देकर तो नहीं लाएंगे आपको। देखो उधर पैसे देके लाए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है। जैसे ही साहब बोलने लगे 7 मिनट 12 सेकंड के बाद आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना है मोदी मोदी मोदी। उनकी दिहाड़ी खत्म। उसके बाद 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्री बहुत जोर पे काम कर रही है। अभी आने वाले दिनों में जुमले आएंगे। एक तो आ गया, लॉलीपॉप देंगे आपको, लॉलीपॉप के सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। और हम इस बात पे खुशी मनाते हैं, कमाल है भी 200 रुपए सस्ता। लेकिन ये नहीं सोचते 1000 रुपया महंगा भी इन्होंने किया था। डाकू ने अपनी जेब में से 100 रुपया निकाला, उसको शगन दिया, बेटा आशीर्वाद है, आपको बहुत मंगलमय जीवन हो, बहुत आशीर्वाद है, और लूट के चले गए। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई। परिवार का कोई मेंबर पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट के भले ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। भाई यही हमारे साथ करते हैं। हम तो 4.5 साल लूट लिया, लेकिन 200 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया यार। सरकारी जो बिजली बोर्ड है हमारा, उसने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद लिया कि तुम हमसे नहीं चलेगा तो हम चला के दिखाएंगे। ये नीयत है भाई साहब, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है, ये अरविंद केजरीवाल का खींचा हुआ एक नक्शा है। इस पे चलना है। अगर तो इस पे चल सकते हो तो चल लो, वरना सत श्री अकाल, वरना પંજાબના સીએમ ભગવાન માન્યના કટાક્ષો બાદ દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે પણ વર્તમાન સરકાર પર આક્ષેપ કર્યા હતા કે આમ આદમી પાર્ટીના ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્યથી વર્તમાન સરકારને બીક લાગી રહી છે। ચૈતર વસાવાને સરકાર દ્વારા પોતાની પાર્ટીમાં સમાવેશ કરવા માટે દામ સામ દંડ ભેદની નીતિ અપનાવી રહી છે। પણ ચૈતર વસાવા અને આમ આદમી પાર્ટી વર્તમાન સરકાર સામે નહીં ઝૂકે અને આવનાર લોકસભાની ચૂંટણીમાં ચૈતર વસાવા લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવશે અને આવતીકાલે ચૈતર વસાવાને મળી આગળ ચર્ચા કરવાના છે તેવું જણાવ્યું। आज आप लोगों से मिलने आए हैं और कल हम जेल में चैतर वसावा से मिलने के लिए जाएंगे। इन्होंने चैतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चैतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चैतर वसावा हमारा छोटा भाई है। शकुंतला बेन चैतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे। उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने
के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी है चेतर वसावा ने, जितनी बातें लिखी है, स्कूल की बात लिखी है, अस्पताल की बात लिखी है, जल जंगल जमीन की बात लिखी है, रोजगार की बात लिखी है, जमीन हड़पने की बात लिखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात लिखी है। 30 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किया? अगर बीजेपी कर देती तो आदिवासी समाज को चेतर वसावा की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने नहीं किया, इसी से चेतर वसावा को इनके लिए आवाज उठानी पड़ी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 साल से बीजेपी का राज है गुजरात में। आज यहाँ इतने आदिवासी गांवों से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चेतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर अब गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। यही गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के लिए तो लड़ रहा है चेतर वसावा। आदिवासी समाज के लिए इतना हजारों लाखों करोड़ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से आता है, गुजरात सरकार से आता है। कहां जाता है सारा पैसा? एक भी पैसा अपने गांव में नहीं आता, एक भी पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। इसी के खिलाफ चेतर वसावा लड़ाई लड़ रहा है, इसी के खिलाफ चेतर वसावा आवाज उठा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो हमारी लूट, हमारा डाका बंद हो जाएगा। दोस्त, इसीलिए उन्होंने उसको जेल में डाला। अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतर वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा, तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, आज अगर चेतर वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चेतर वसावा ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। वो चाहता तो ऐशोआराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था, मंत्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। चेतर वसावा, चेतर वसावा शेर है। और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। ये लड़ाई चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है।
क्या मैं उनको चेतर वसावा को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ, क्या सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चेतर वसावा को? आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कल हम जाएंगे चेतर भाई से मिलने के लिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है, गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। लास्ट में मैं एक नारा बोलूंगा, एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जेल के ताले टूटेंगे, आप बोलना चेतर वसावा छूटेंगे। जेल के